नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विथ नंबर्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो हियर इज फर्स्ट थिंग्स दैट digits. I think that everyone you know that what are the digits. In counting 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are digits. And with the help of these digits, we will make different numbers. So dear, two-digit numbers. What is the two-digit numbers and how can you form a two-digit numbers? So dear, let us be right here two digits like that 4 3, and this 4 3 is written as 40 plus 3. And again dear, this 40 is written as 4 into 10, means that is 10 into 4 plus 3. And dear, now we can write it just like that, 10 and this 4 letters A, and 3 is written as B. So dear, in general form we will write two-digit number in the form of 10A plus B, where this is the 43 means two-digit number we can write as A and this is B. So in the generalized form we can write this two-digit number 43, 4 as A and 3 as we take B. 4 की जगह पे हमने A लिया और 3 की जगह B लिखा, तो इस टू डिजिट नंबर्स को हम लिख सकते हैं 10A plus B. In the same way we can write the three-digit numbers, and now we will take here an example for you just like that, 2 4 7. And here we can write this 2 4 7 just like that, 240 plus 7, and this 240 is written as 200 plus 40 and plus 7, and again this is written as 100 into 2, that is 200, and 40 means 10 into 4 and plus 7. Now if we take these three digits just like that, as 2 as A and 4 as B and 7 as C, that is 247, then this number is written as 247 means ABC, and in generalized form we can write just it is 100, and in the place of 2 means A, and plus 10 in the place of 4 means B, and in the place of 7 we will write C. So this is the general form of three-digit number. Okay dear, now how can we solve the question in this given exercise 16.1? So dear, let us, it is exercise 16.1. 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
And dear, I want to tell you that here is question just based on game. So how can we play the game with these numbers? So let us, here is first question for you. And question number first is 3a and plus 25, and the result of this number is b2. Now here we will find the value of a and b with the help of game. So dear, we can see that easily. Here is 2 and here is 5 and this is 5 is added to a. जब हम 5 को a में ऐड करेंगे तो ओबियसली हमें नंबर 5 से बड़ा मिलेगा. अगर बड़ा मिलेगा इसका रिजल्ट तो वो नंबर 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 तो 2 से कम है. इसका मतलब है कि वो नंबर 2 डिजिट नंबर होगा. 2 डिजिट नंबर का मतलब है 10 से बड़ा होगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 2 मिले. तो 5 में एक ही नंबर ऐसा हो सकता है, एक ही डिजिट ऐसा हो सकता है जिसको हम ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, दैट इज 12 मिलेगा. सो इट विल बी डियर, व्हाट कैन यू थिंक? यस ऑफ कोर्स, इट इज 7 plus 5 and 7 plus 5 means dear 12, and in the place of first unit you can see that first place digit is 2 and 1 is we can take as carry. So the place of a we will put 7, and now obviously you can see that in the place of b what you will get, 1 plus 3 plus 2 that is 6. तो यहाँ b की जगह आपको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा. तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा a इक्वल टू 7 and b इक्वल टू 6, and finally our result we can write just like that, that is 3 and a means 7 and 25 we will add here, then b will get, it is 2 and 6, that is 62. So dear, our aim is to find the value of a and b only. So the value of a is 7 and the value of b is how much? 6. So dear, this is the answer of this question. Now let us another question, question number 2, and the question number 2 is given here. It is 4a and it is added 98 in this number, then the result is C, B and 3. अब हमें यहाँ भी A और B और C का वैल्यू फाइंड करना है. तो डियर आप देख सकते हैं यहाँ पे इजली हाउ कैन यू फाइंड. देखिए 8 में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो 3 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 8 है वो 3 से बहुत बड़ा नंबर है. तो इसका मतलब हम 8 में अगर कुछ भी ऐड करेंगे मीन्स a का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमें 2 डिजिट नंबर ही मिलेगा. 2 डिजिट नंबर का मतलब 10 या 10 से बड़ा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें समझ में आ जाएगा कि 8 में हम क्या ऐड करें कि हमें 2 डिजिट नंबर मीन्स या तो 13 मिले या फिर 23 मिले
या फिर 33 मिले। चूंकि वंस प्लेस पे आपको 3 ही चाहिए, तो वंस प्लेस पे 3 लाने के लिए हमें 13 चाहिए होगा, या फिर 23 चाहिए होगा, या तो फिर 33, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्रम में। बट कीप इन माइंड दैट ए इज ए डिजिट नॉट ए नंबर। नंबर का मतलब जो 2 डिजिट हो, तो हमें ए 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें डिजिट चाहिए। ए के प्लेस पर डिजिट, डिजिट का मतलब 0 से 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ही हमें केवल कोई डिजिट यहां पे बताना है। सो डियर, इफ यू टेक जस्ट इन द प्लेस ऑफ ए 5, देन वी विल गेट 5 + 8 13, और 13 जब हम लेंगे तो हमें 1 क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा। कैरी मिलेगा तो वो हम 1 यहां पे लिख ले रहे हैं, ठीक है डियर। अब आप इस सभी को प्लस कीजिए, 1 + 4 कितना हुआ 5, 5 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, मीन्स बी के प्लेस पर आपको क्या मिल सकता है 4। कैरी फिर 1 हो गया, और कैरी जब ये 1 होगा तो इस कैरी सी के प्लेस पर ये कैरी आ जाएगा। मीन्स ए के वैल्यू के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वी विल राइट हियर ए जस्ट लाइक दैट 5 + 8 दैट इज 13, और 13 में हमें केवल लेना है 3। इसके बाद 1 हमारा कैरी हो जाएगा। बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कैरी को ऐड करेंगे, +4 + 9 को ऐड करेंगे, तो हमें ये मिलेगा 14। 14 में भी हम केवल 4 ही लेंगे, तो ये बी का वैल्यू हो जाएगा। उस सी के वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी के लिए यहां पर कैरी बचा हुआ है 1 और कुछ भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 1। सो डियर, फाइनली यू कैन राइट दैट A = 5, B = 4 and C = 1. So dear, finally this is your answer. तो इस तरह से हम एडिशन में कोई भी वैल्यू जो अननोन है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से हम डिजिट को फाइंड करेंगे। सो डियर, लेट ए क्वेश्चन दैट इज A B into 3 and we will get the result CAB। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ABC के वैल्यू यहां भी फाइंड करने हैं। तो दोस्तों देखिएगा किस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन में इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखिए यहां पे हम B को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिजिट हम यहां पुट करेंगे या जो जिस डिजिट से हम B को रिप्लेस करेंगे वही रिजल्ट हमें यहां मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन से डिजिट हो सकते हैं दोस्तों, 0 हो सकता है। अगर आप यहां पे 0 लेते हैं तो 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो इट इज द पॉसिबल वैल्यू, ये हमें इसकी फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, दैट इज 0। और इसके बाद में कोई डिजिट ऐसा है क्या, और इसके बाद में कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करें उस डिजिट को और आपको वही सेम रिजल्ट मिले। तो अब क्या करेंगे, ए के प्लेस के लिए देखना है दोस्तों। आप देखो हम फिर से यहां पे ए पर ऐसा डिजिट प्लेस करेंगे कि 3 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें वो रिजल्ट 3 ही मिलना चाहिए। तो ऐसे डिजिट कौन से हो सकते हैं दोस्तों, आप देखिए यहां पे पहला डिजिट तो हमें मिला ही था,
तो यहाँ b का वैल्यू आपका फिक्स हो चुका है, b का वैल्यू आपका हो गया 0। अब a के वैल्यू के लिए देखें, फॉर द वैल्यू ऑफ a 0, पहला तो 0 ही हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगा? 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब आप यहां पे 0 प्लेस करेंगे और 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में भी आपको क्या मिलेगा? 0। और यहां पे c वैल्यू है, वो फिर अगला कोई डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए है नहीं, तो फिर c आपको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि a के प्लेस पर 0 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है, अगर हम 0 प्लेस करते हैं तो ये भी डिजिट फर्स्ट प्लेस डिजिट भी 0 हो जाएगा, सेकंड प्लेस डिजिट भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो नंबर ही 0 हो जाएगा। तो दिस इज इम्पॉसिबल, a आपका किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। फिर a का वैल्यू क्या हो सकता है दोस्तों? अब हमें और सोचना है। तो नेक्स्ट वैल्यू होगा a इक्वल टू 5। चूंकि यहां पे देखो, जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15 मीन्स यहां भी 5 वंस प्लेस 5 ही आएगा। और इसके बाद 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 में कोई भी डिजिट नहीं आएगा, केवल आपका डिजिट वो हो सकता है, वो डिजिट आपका केवल होगा 5। तो अब हम यहां पे 5 पुट करेंगे दोस्तों, तो हमें b ये a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो 3 5 जा 15, तो यहां पे जो हमने 0 लिखा हुआ है, इस 0 के प्लेस पे आपको क्या रखना होगा? 5। 3 5 जा 15 होता है ना दोस्तों, तो यहां पे आपका हो जाएगा 15। तो ये वैल्यू हो गया आपका 5। और कैरी इसका 1 होगा, तो कैरी 1 वो c के प्लेस पे आ जाएगा। तो हमें अभी तीनों वैल्यू मिल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे a का वैल्यू आपका हो गया 5, b का वैल्यू हो जाएगा 0 और c का वैल्यू में कोई आपको ज़्यादा नहीं थिंक करना पड़ा, क्योंकि c तो कैरी था। तो 3 5 जा 15 में आपका ये डिजिट हो जाएगा a का वैल्यू, और ये 1 जो बचेगा कैरी, ये वैल्यू हो जाएगा c। तो यहाँ पे c आ गया आपका 1। फाइनली डियर, दिस इज योर आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब हमने एक क्वेश्चन और लिया 6। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ab multiplied by 5, finally we get the result CAB। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे फिर से हमें वही काम करना है इस क्वेश्चन नंबर के लिए। आप देखो, B के प्लेस पर हम 2 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक तो 5, एक पहला वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि जब हम यहां पे b की जगह पे 0 लिखेंगे तो 5 इंटू 0 ही होगा, मींस जो डिजिट हम यहां रखेंगे वही आपको मल्टीप्लाई के बाद भी मिलना चाहिए। तो यहां अगर हम 0 लिखते हैं तो 5 0 जा 0। और दूसरा केवल पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, वो हो सकता है 5, क्योंकि यहां पे जब आप 5 प्लेस करेंगे तो 5 5 जा 25, तो यहां फिर से 5 मिल जाएगा और उस केस में 2 कैरी भी होगा। तो यहां पे कौन सा वैल्यू एग्जैक्ट होगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहां पे 0 ही लेते हैं। तो अगर 0 लेंगे तो हमें यहां पे वैल्यू मिलेगा 0 और इस जगह पे भी हमें वैल्यू मिल जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद में अब हम a पर क्या डिजिट प्लेस करेंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन में सेम ही नंबर मिले। तो देखो यहां भी वही फॉर a के लिए भी हमें वही करना है। एक तो वैल्यू आपका 0 और दूसरा वैल्यू होगा 5। तो यहां 0 तो हो नहीं सकता, 0 इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर हम 0 लिखेंगे
तो आपका नंबर जो डिजिट है, ये जो नंबर बना हुआ है 0000 कोई नंबर नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ए 0 नहीं होगा। देन ए का वैल्यू क्या होगा, देन ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। और जब हम ए के प्लेस पर यहां 5 पुट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में यहां भी आपको फर्स्ट प्लेस पे 5 मिलेगा और कैरी बचेगा आपका 2, वो कैरी इस प्लेस पे आ जाएगा। तो सी के लिए हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें सिंपली सी का वैल्यू मिलेगा 2। चूंकि यहां पे 25 आएगा तो 25 में ए का वैल्यू हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि हमारा आंसर होगा, वो हो जाएगा ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 2. So dear, this is final answer of this question. I think that you will enjoy this chapter and this exercise playing with number.